Hello students, how are you? Hope you are fine. Welcome to your online classes. Myself Shalini Agarwal, your English teacher. Today we will read second chapter of class 4th, An Excellent Cook. Students, we will read this chapter in two parts. Today we will read the first part of this chapter. This chapter is about a little girl, Tiana. She had a good friendly relation with her father. She loved cooking. Now we will start our chapter. After returning to her cozy home, Tiana decided to help her father, Mr. James, to cook dinner. मीन्स अपने आरामदायक घर में लौटने के बाद टियाना ने डिसाइड किया कि वो अपने फादर मिस्टर जेम्स की डिनर कुक करने में हेल्प करेगी. The meaning of cozy is warm and comfortable. The meaning of cozy is warm and comfortable. Her father was an excellent cook. Just like him, the little girl loved to cook too. The meaning of excellent is very good. The meaning of excellent is very good. टियाना के फादर excellent मीन्स बहुत अच्छे कुक थे और अपने फादर की तरह टियाना को भी कुकिंग करना अच्छा लगता था. स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ? नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. Tiana and her father were busy in preparation for cooking when her mother entered the kitchen. The meaning of preparation is previous work before any task. The meaning of preparation is previous work before any task. मीन्स कुछ काम करने से पहले उसकी तैयारी करना. टियाना और उसके फादर बिजी थे प्रिपरेशन करने में, तैयारी करने में किस चीज़ की? वो कुकिंग के लिए. जब उनकी मदर किचन में आई, शी आस्क्ड, "What are you going to make for us, sweetheart?" The meaning of sweetheart is an expression for love. The meaning of sweetheart is an expression for love. जब टियाना की मदर किचन में आ गई तो उन्होंने पूछा कि स्वीटहार्ट मीन्स माय डियर टियाना, तुम हमारे लिए क्या कुक कर रही हो? स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ? नाउ वी रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. Gombo, replied Tiana. This was her father's signature dish. Cooking gombo was Mr. James' specialty. The meaning of gombo is a type of soup. The meaning of gombo is a type of soup. टियाना ने कहा गॉम्बो. गॉम्बो उसके फादर की सबसे फेमस डिश थी, उनकी सिग्नेचर डिश थी. द मीनिंग ऑफ सिग्नेचर डिश इज डिश विच इज़ फेमस विथ समवन. The meaning of signature dish is a dish which is famous with someone. गॉम्बो कुक करना मिस्टर जेम्स की स्पेशलिटी थी. He even had an enormous pot which he kept specially for his gombo. So little Tiana sat perched on a stool, stirring, seasoning and tasting. मिस्टर जेम्स के पास एक enormous means very big pot था जो उन्होंने स्पेशली गॉम्बो बनाने के लिए रख रखा था. सो लिटिल टियाना चढ़ गई स्टूल के ऊपर और उसके एज पे बैठकर स्टिरिंग करने लगी, मीन्स चलाने लगी किस चीज़ को? गॉम्बो को. फिर उसने गॉम्बो में सीजनिंग मीन्स हर्ब्स एंड सॉल्ट मिलाए और उसे टेस्टिंग के लिए तैयार किया. आई थिंक इट्स डन, टियाना अनाउंस्ड एंड वॉच्ड हर फादर एंशियसली as he took a spoonful. The meaning of anxiously is with great interest. The meaning of anxiously is with great interest. टियाना ने कहा कि नाव गॉम्बो तैयार है. उसने अपने फादर को देखा कि वो एंशियसली मीन्स बड़े इंटरेस्ट से गॉम्बो को देख रहे थे. स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ? नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. लेट्स सी, said Mr. James as he put the spoon to his mouth. Delicious, sweetheart. This is the best gombo I have ever tasted. The meaning of delicious is very tasty. The meaning of delicious is very tasty. मिस्टर जेम्स ने कहा, चलो देखें गॉम्बो कैसा बना है. उन्होंने एक स्पूनफुल गॉम्बो अपने मुंह में रख लिया.
उन्होंने कहा डिलीशियस मीन्स बहुत टेस्टी बना है, और मैंने अब तक जितने भी गॉम्बो टेस्ट किए सबसे टेस्टी आज ही बनाए गॉम्बो. Now it's Tiana's mother who was going to taste the gombo. Mother also thought it was delicious. अब टियाना की मदर ने भी गॉम्बो टेस्ट किया. उन्होंने भी गॉम्बो को बहुत टेस्टी बताया. Student, do you understand this paragraph? Now we'll read the next paragraph. And with that, the family invited the neighbors to enjoy the gombo on the porch outside. The meaning of porch is an open area of a house. The meaning of porch is an open area of a house. Means घर के बाहर का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? पोर्च. ना मिस्टर जेम्स की फैमिली ने अपने नेबर्स को गॉम्बो एंजॉय करने के लिए इनवाइट किया. मीन्स उन्हें बुलाया अपने घर पर. कहाँ पर? पोर्च पर. एट द नाइट एयर फिल्ड विद द साउंड्स ऑफ क्लिकिंग स्पून्स एंड कन्वर्सेशन एंड लाफ्टर. अब वहाँ पे जो रात में पूरे में किसकी आवाज़ आने लगी? क्लिकिंग साउंड. मीन्स जब हम सूप पीते हैं स्पून से तो क्लिकिंग साउंड होती है ना, वो साउंड आने लगी. और वो लोग आपस में कन्वर्सेशन मीन्स बातें करने लगे और हंसने भी लगे. नाउ स्टूडेंट वी विल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. टियाना's father loved to arrange such small parties. He believed food the best tool to bring harmony in society. He said, "You see, food brings folk together from all walks of life. It warms them right up and puts smiles on their faces." टियाना के फादर को इस तरह की छोटी छोटी पार्टीज देना अच्छा लगता था, बिकॉज वो मानते थे कि जो फूड है वो बेस्ट तरीका है सोसाइटी में हारमनी मीन्स प्यार बढ़ाने का. वो बिलीव करते थे कि साथ साथ खाना खाने से फोक मीन्स लोग, पीपल, पास को लोगों को पास लाया रखता है. इससे लोगों में प्यार बढ़ता है और लोगों के चेहरे पे स्माइल भी आती है. स्टूडेंट, डू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैड रेड टुडे? स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर in our next class. Thank you and bye bye students. Be at home and be safe.